for a clinician, more tools we have to help our patients. That is great. So in functional medicine, we are more integrated. We're trying to have different solutions for different issues. This is where medicinal mushrooms are a powerful way to support the immune system, to support they're good adaptogens. So very powerful. I have been using some of them, and cordyceps is another one. It's another it's one of the mushroom which is quite powerful and easily readily available. So one of the person who grows the mushroom himself, and he has been supplying to most of the clinicians, and I have been also using from him. And, I am seeing good outcomes by using these mushrooms on my patients. So this is how we got in contact with Gaurav. He's from Grow Up, and quite a generous man. He's a hard worker. He's an entrepreneur. So he's also producing a lot of good things, which can become a tool for us to support our patients. And of course, good quality products is a need. And if we get a good quality product, our patient will have, or our client will have, a better outcome. So Gaurav will have a small presentation to talk about the benefits of this mushroom, and of course then we can take up questions. And after that, how do you get those for your patient? How do you get those shipped to your patient? So Gaurav, over to you. Thank you, sir. सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं थोड़ा स्क्रीन सर शेयर की सर परमिशन दे दीजिए सर. मैंने आपको बना दिया है होस्ट. Sir, first of all, sir, thank you for sir giving this opportunity, sir. Especially, sir, thanks for sir Dr. Ashwini Garg and Dr. Ruhi ma'am, and Dr. Preeti Nanda and Dr. Anisha sir. So, myself is Gaurav Maji. Today we are represent our major topic is a Cordyceps militaris, the magical mushroom. इसके बारे में हम जानेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से कि ये कॉर्डिसेप्स मिलिटरी एक्चुअल में है क्या, और क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके हमें हेल्थ में बेनिफिट देता है, और कैसे हम इसको ग्रो करते हैं. मैं थोड़ा इसमें रखा है, मैंने मेंशन किया है कुछ स्लाइड में, और आने वाले जो स्लाइड में है वो आप जो भी क्वेरीज हैं तो आप हमें मतलब मैसेज कर सकते हैं, और जो कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसके आंसर अच्छे से मैं दूँ. So let's start, sir. If you are, sir, permission, sir, can I start, sir? Absolutely, please go on, sir. This is your show. Yeah. Bilkul, we are waiting. Oh, wow, ma'am. Yeah, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. बहुत अच्छी हूँ, and all the best. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you for, ma'am. ये product बहुत ही खूबसूरत है, तो. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. All the best. Yes. Okay. So start करते हैं. तो सबसे पहले हम मशरूम के बारे में जानेंगे कि मशरूम स्पेशली है क्या. कि मोस्टली हम देखते हैं कि मशरूम को हम जो खाते हैं, मतलब सब्जी वाली जो सब्जी जो ओस्टर बटन मशरूम होती है उसको हम खाते हैं, लेकिन और भी वर्ल्ड में मशरूम हैं जो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बारे में हम प्योर डिटेल में जानेंगे. मेजरली क्या है कि हमने मशरूम को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करके रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल है, सबसे पहले है मेडिसिनल मशरूम, और सेकंड है इसमें ईटेबल मशरूम, एंड थर्ड इज अ टॉक्सिक मशरूम. सो मेडिसिनल मशरूम में कौन कौन से मशरूम आती हैं? तो सबसे पहले है कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज मशरूम, सेकंड है कॉर्डिसेप्स साइनेसिस, एंड थर्ड इज गैनोडर्मा. स्पेशली ये और भी मेडिसिनल मशरूम है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेजर मशरूम को ही मेंशन किया है.
और अगर मैं ईटेबल की मशरूम की बात करूं तो ये वाइट बटन मशरूम होता है। सेकंड इज ओस्टर मशरूम एंड इज थर्ड इज मिल्की मशरूम। सो दिस इज ये ईटेबल मशरूम जो स्पेशली हम कहें तो तरी की जो सब्जी हम बना के खाते हैं, इजीली हम कितनी भी क्वांटिटी में खाना यूज करना चाहें तो हम खा सकते हैं। और टॉक्सिक मशरूम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है कि जैक और लैंटर्न मशरूम, कॉर्पिनस मशरूम एंड चेंटेला मशरूम। यस, सो एंड अदर इज अमेरिका मशरूम। ये कुछ ऐसी टॉक्सिक मशरूम होते हैं कि अगर इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी मशरूम भी होती हैं कि अगर आपको उसकी स्मेल भी मिल जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो कुछ ऐसी मशरूम होती हैं। सो अगर और ओवरऑल जैसे मैंने बताया तो 600 प्लस स्पेसीज ओवर और वर्ल्ड में स्पेस मशरूम की प्रजाति अवेलेबल हैं। मैं कुछ यहाँ पे पिक्चर शो करना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन सी इसमें मशरूम होते हैं, किस टाइप की दिखती हैं स्पेशली। सबसे पहले ईटिंग मशरूम है लाइक दिस। ओस्टर मशरूम है, ये नेचुरल भी होता है लेकिन आर्टिफिशियल भी इसको हम ग्रो करते हैं। सेकंड है मिल्की मशरूम लाइक दिस एंड बटन मशरूम। सो दिस इज अ ईटेबल मशरूम। इजीली हम जो मार्केट है, जो सब्जी मंडी होती है, इजीली वो यहाँ पे मिल जाते हैं जिसको हम तरीके सब्जी हम खाते हैं। ये आपने देख के आपको आइडिया लग गया होगा। सो सेकंड इसमें है टॉक्सिक मशरूम, मैंने रखा है ये जैक ओ लैंटर्न मशरूम है। ये नेचुरल ऐसे ग्रो होता है, इस टाइप से दिखता है, येलो पार्ट में काफी ब्यूटीफुल है। एंड कॉर्पिनस मशरूम इस टाइप से दिखता है, जो जंगलों में स्पेशली पाया जाता है ये। और अमेरिका मशरूम है ये लाइक दिस एंड चंडीला मशरूम। दिस काफी ब्यूटीफुल मशरूम दिखते हैं, लेकिन अगर उतनी ही ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होती है कि अगर इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है। मेडिसिनल मशरूम की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो मेजर इसमें जो फोकस रखा है जो कॉर्डिसम मिलिटरीज द मैजिकल मशरूम। तो ये कॉर्डिसम मिलिटरीज है, इस टाइप से ये हमें दिखता है जब ग्रोइंग कंडीशन में होता है, मेच्योर फॉर्म में होता है तो इस टाइप से हमें दिखता है। और सेकंड है गैनोडर्मा। ये भी मेडिसिनल मशरूम है, एज ए इसको एज ए इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इसको यूज करते हैं और भी इसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं। एंड कॉर्डिसम साइनेसिस ऐसे इसको अदर नाम इसको कीड़ा जड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेचुरली ये हिमालय वाले एरिया पे ग्रो होता है, जो हिमालय पे मैदानी इलाके रहते हैं वहाँ पे ये ग्रो करता है। जो जमीन से 4000-5000 फीट के ऊपर वहाँ पे मिलता है। और ये साल में सिर्फ एक ही बार हार्वेस्ट होता है कि अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इसको हम कीड़ा जड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक कीड़े के ऊपर उगता है। जैसे ये आप येलो पार्ट आप देख रहे हैं, तो येलो पार्ट ये ऐसे एक कीड़ा है जो जमीन के अंदर दब जाता है। और जो ब्लैक पार्ट जो देख रहे हैं ये मशरूम है। तो ये औषधि है, तो इसलिए इसको हम कीड़ा जड़ी बोलते हैं क्योंकि ये कीड़े के ऊपर ग्रो होता है। तो स्पेशली हमारा फोकस कॉर्डिसम मिलिटेरिस है, लेकिन कॉर्डिसम मिलिटेरिस भी कीड़ा जड़ी के थ्रू ही बनाया गया है, माइक्रोबायोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू। तो ये भी एक पूरा स्लाइस रहता है, काफी लंबा प्रोसेस रहता है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, तो उन्होंने इसको मतलब कॉर्डिसम साइनेसिस से कॉर्डिसम मिलिटेरिस को बनाया गया है। और इसके बारे में थोड़ा मैं कंपेयर करना चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। कॉर्डिसम मिलिटेरिस, कॉर्डिसम साइनेस, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डिसम मिलिटेरिस एंड कॉर्डिसम साइनेसिस। तो कॉर्डिसम साइनेसिस की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि हाई एल्टीट्यूड पे ये पाया जाता है। और ये नॉन वेज में आता है कॉर्डिसम साइनेसिस। ये अपना कॉर्डिसम मिलिटेरिस अपना वेज में आता है, क्योंकि इसके अंदर हम जो बेस बनाते हैं तो ये ब्राउन राइस का बेस रहता है। और कॉर्डिसम साइनेसिस का जो बेस रहता है वो एक कीड़े का रहता है। जब येलो पार्ट आप देख रहे हैं तो ये एक बेस होता है जो कीड़ा का, उसके ऊपर ये ग्रो करता है। इसीलिए इसको हम नॉनवेज मतलब नॉनवेज कैटेगरी में आता है। ओके, कॉर्डिसम मिलिटेरिस में कुछ नॉनवेज भी आते हैं इसमें, कि जो एक रेसिपी रहती है, रेसिपी को हम फॉलो करते हैं तो उसमें जैसे कि ब्राउन एग का भी यूज करते हैं, एक कुकी रहते हैं उनका भी यूज करते हैं।
तो इसमें नॉन वेज और वेज दोनों आते हैं, लेकिन स्पेशली जो हम ग्रो करते हैं, जो हम रेसिपी यूज करते हैं, वो हम ब्राउन राइस का यूज करते हैं ओनली। तो ये प्योर वेज में। अगर मैं कॉस्ट वाइज की बात करूँ इसकी, तो ये दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है और थोड़ा कॉस्टली भी है, हाई बेनिफिशियल भी है। जितना ज़्यादा महंगा है उतना ज़्यादा ये बेनिफिट भी इसके है। अगर इसके कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस की बात करूं, तो ये सदियों से यूज हो रहा है। अपने जो ऋषि मुनि है वहां से इसको यूज कर रहे हैं। और इसके और मैं बेनिफिट की मैं बात करूं तो, और प्लस कॉस्ट वाइज बात करूं तो ऑन एवरेज ये 30 से 40 लाख पर केजी के सबसे ज्यादा कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। इसलिए इसको किंग ऑफ मशरूम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ना कॉस्टली भी है और हाईली इसके बेनिफिट भी है। और ये कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज है जो कि अपने साल में हम 6 बार उगा सकते हैं। आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे साल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम ग्रो करते हैं। ये थोड़ा ये कॉर्डिसेप्स आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना महंगा क्यों है। महंगा ये इसलिए है क्योंकि साल में एक बार होता है, बहुत कम मिलता है। जो वहाँ पे पर्सन जाते हैं इसको हार्वेस्ट करने के लिए, तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 2 या 3 ही पीस इसके कॉर्डिसेप्स के ढूंढ पाते हैं, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस के। तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज है तो इसमें क्या है, इजीली हम जितना चाहें उतना हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें, न्यूट्रिशन फैक्टर की बात करूँ इसमें, तो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस से एज पर स्टडी के हिसाब से कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस से कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज में ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सो डिफरेंट बिटवीन कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पे ये स्लाइड मैंने मेंशन किया है क्योंकि लोग मोस्टली इसको दोनों को हम कीड़ा जड़ी के नाम से ही जानते हैं। तो थोड़ा एक कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोनों में डिफरेंट ये है, नाम एक ही है लेकिन थोड़ा अलग अलग है दोनों। तो नेक्स्ट थोड़ा कॉर्डिसेप्स के बारे में जानते हैं। कॉर्डिसेप्स जैसे मैंने बताया कि कॉर्डिसेप्स इज जेनिस ऑफ एस्कोमाइसिट्स फंगी दैट इंक्लूड्स अबाउट 600 प्लस स्पीसीज। मोस्ट कॉर्डिसेप्स स्पीसीज आर एंडोपैरासाइट एंड पैरासाइटिक मेनली ऑन इंसेक्ट। ओके, सो अगर इसके और थोड़ा हिस्ट्री पे जाते हैं, तो अगर इसकी क्लास की बात करूं तो क्लास इसकी सोडारियोमाइसिस है, ऑर्डर इसको हाइपोक्रियलिस है, किंगडम फंगी है क्योंकि इसका फंगस पे ग्रो होता है। और डिवीजन इसको एस्कोमाइकोटा, साइंटिफिक नेम इसका कॉर्डिसेप है। और हायर क्लासिफिकेशन में कॉर्डिसी पेटेसी के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर और इसके कॉर्डिसेप के बारे में देखें, कॉर्डिसेप स्पीसीज ऑफ फंगस इन द फैमिली ऑफ क्लेविसिपेटेसी एंड the type of species of the genus Cordyceps. It was originally described by Carl Linnaeus as a 1753 as a Claviria militaris. तो कार्ल लिनस ने 1753 में इसको एक्सप्लेन किया था। सो इसको 2 पार्ट में बताया गया था कि कॉर्डिसेप्स इसका 2 पार्ट में है, एक कॉर्डी प्लस सेप। कॉर्डी मतलब कि क्लब, सेप मतलब कि हेड। कॉर्डी मतलब उसकी बॉडी, जो बेस उसका होता है, तो उसका बेस उसको हम बोलते हैं क्लब को हम बॉडी। और हेड मतलब कि जो ग्रो होता है ऊपर का, उसका हेड, मेन पार्ट जो कॉर्डिसेप का होता है, तो उसको हम हेड बोलते हैं। इसलिए कॉर्डिसेप, सो यस, कॉर्डिसेप इज ए कॉर्डी प्लस सेप। ओके, सो अगर इसकी मैं नाम की मैं बात करूं तो इसके हर जगह पे इसके अलग अलग नाम है। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो यारसागुम्बा, यारछागुम्बा, ये स्पेशली चाइना के नाम है। इंडिया में ये अभी अभी आया है, लगभग 5 से 6 साल हुए हैं, तो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन जो नेचुरल कीड़ा जड़ी है वो हिमालय में जो एरिया है, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, उत्तराखंड है, तो यहाँ पे लोग इसको कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं। अदर नाम जो आउट ऑफ इंडिया में जानते हैं वो कॉर्डिसेप के नाम से जानते हैं। और इंडियन नेम इसके हिमालय संजीवनी, हिमालय गोल्ड, हिमालय वाइग्रा के नाम से जानते हैं। हिमालय संजीवनी हम इसको इंडियन नेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला तो ये हिमालय पे ग्रो होता है, और दूसरा संजीवनी इसलिए बोलते हैं कि आपके बॉडी में चाहे शॉर्ट टर्म डिसीज हो चाहे क्रोनिक डिसीज हो, वो सभी पे ओवरऑल इफेक्टिवली
इफेक्टिवली रिजल्ट इसका रिस्पॉन्स मिलता है। सो हिमालय गोल्ड इसलिए हम बोलते हैं, गोल्ड मतलब कि इसके गोल्डन कलर है इसका, इसलिए इसको हिमालय गोल्ड बोलते हैं। हिमालय वाइग्रा, वाइग्रा इसलिए बोलते हैं कि मोस्टली लोग इसको क्या है ऐसे स्टेमिना के लिए यूज करते हैं। तो आउट ऑफ कंट्री में मोस्टली जितने एथलीट भी हैं, अपने एक्टिवनेस है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे वाइग्रा के रूप में भी यूज करते हैं। अगर आप प्रेजेंस की बात करूँ कौन कौन से प्लेस पे ये रहता है, मिलता है, तो जो नेचुरली है वो एक ही प्लेस है, हिमालय एरिया। और जो हिमालय के सराउंडिंग एरिया है, जो हिमालय के सराउंडिंग में जो रहते हैं, तो वो वहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं। तो बाकी कौड़ी से मिलिटरीज है, तो वियतनाम और थाईलैंड इसके मेजर हब है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा इसके रिसर्च सेंटर और साइंटिफिक यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा है। बाकी के अदर जापान है, कोरिया है, यहाँ पे ओवरऑल मतलब अपने पर्सनल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज करें। तो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊं कि इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट की बात करूं, तो न्यूट्रिशनल फैक्ट कॉर्डिसम मिलिटरीज में स्पेशली दो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट है कॉर्डिसेपिन, सेकंड है एडिनोसिन। जी, तो कॉर्डिसेपिन ये इसमें हाईली कंटेंट में पाया जाता है, एडिनोसिन इसकी थोड़ी क्वांटिटी कम रहती है, लेकिन इसमें भी जितनी हमें क्वांटिटी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी हमें क्वांटिटी में ये मिलता है। तो और भी इसके अलावा और भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जस्ट लाइक विटामिन डी, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लियोसाइड्स, है ना। और अगर इसमें माइक्रोफैक्ट की बात करूं तो इसमें विटामिन ई, B1, B12, B2, प्रोटीन, है ना। और ये अमीनो एसिड भी इसमें भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, और स्पेशली इसमें 18 अमीनो एसिड हैं, जैसे लाइक लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड एंड प्रोलिन। माइक्रो एलिमेंट में अगर मैं बात करूं तो इसमें पोटेशियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, यूरोनियम, तो ये भरपूर मात्रा में माइक्रो एलिमेंट एंड मैक्रो एलिमेंट भरपूर मात्रा में इसमें अवेलेबल है, फुल क्वांटिटी में, कि जो हमें बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इसमें हमें एक ही जगह हमें मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, इसलिए इसको ओवरऑल बोलते हैं कि मतलब कि ऑल इन वन। ये आपके अंदर अगर एक दो या दो से अधिक अगर कोई बीमारी है या हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये एक ही चीज से ये हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दिस स्पेशली मैं यहाँ पे थोड़ा हाईली प्रेजेंट करना चाहूँगा। यस, हाँ, कंटेंट ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें स्पेशली है कि अगर देखा जाए कि व्हाट इज मिलिटरीज में, तो इसमें 69.32% ओवरऑल अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ऐसे कॉर्पस इज 14%। तो स्पेशली इसमें अगर देखा जाए सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, तो इसमें लाइसिन है, देखा जाए तो लाइसिन है 15%, इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में अवेलेबल है। और ग्लूटामिक एसिड इसमें 8.79% मैक्सिमम इसमें रहता है, और एस्पार्टिक एसिड है जो 4.75% है, और आर्जिनिन है 5.29%, थ्रियोनाइन 5.99%। तो इसमें जो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, जो हमारे हेल्थ इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये अमीनो एसिड है। और कुछ फैटी एसिड की बात करूं, फैटी एसिड भी इसमें ओवरऑल इसमें 61.3% इसमें देखा जाए लाइनिक एसिड है। फैटी एसिड द कंपोजिशन ऑफ quadricephalic are present in table 2. The fruiting body of quadricephalic was rich in unsaturated fatty acid, about 70% of the total fatty acid. 70% overall इसमें quadricephalic इसमें अवेलेबल है। The most abundant saturated acid was palmitic acid. Its level of were 24.5% in fruiting body, and 21.5% is the corpus. The most abundant unsaturated acid was linoleic acid, as a like 61.3%. So its level of is a 61.3% in fruiting body. तो
सो दिस इज कुछ मैंने ये स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो फैटी एसिड और जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट इसमें थोड़ा डिफरेंट करना चाहूँगा नेक्स्ट स्लाइड में, द डिफरेंस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर बिटवीन कॉर्डिसेपिन एंड एडेनोसिन लेवल। ये स्लाइड ये है कि आने जो कुछ बीमारियां रहती हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहते हैं, तो उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जस्ट जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, कैंसर हैं, एंटीवायरल जो बीमारियां हैं, तो उनमें स्पेशली ये इसका मोड ऑफ एक्शन देखा जाता है, काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये थोड़ा डीपली नॉलेज है, तो लेकिन फिर भी ये डिफरेंट में यहाँ पे एक और पर्पस है। सेकंड है इसमें कि जो कॉर्डिसेपिन और एडेनोसिन, जैसे मैंने बताया कि दो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो इसमें क्या है कि कॉर्डिसेपिन और एडेनोसिन सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन बस एक ही कॉर्डिसेपिन में केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंट है कि तीसरी पोजीशन में ऑक्सीजन जो ग्रुप है ना, वो प्रेजेंस नहीं है। इसलिए इसको हम 3D ऑक्सी एडेनोसिन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे देख रहे होंगे 3 पोजीशन पे ये ऑक्सीजन ग्रुप अवेलेबल है और यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप नहीं है। तो ये एक मेजर रोल रहता है कि ये थोड़ा एक बट जाता है कि जब मैकेनिज्म एक्शन होते हैं जब अपनी बॉडी में, तो वहाँ पे ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आने वाली स्लाइड में स्पेशली मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर इसके मैं बेनिफिट की बात करूँ, कॉर्डिसेप मिलिटरीज, बेनिफिट ऑफ कॉर्डिसेप मिलिटरीज ओवरऑल आपके जैसे बताया कि शॉर्ट टर्म डिसीज हो चाहे क्रोनिक डिसीज हो, तो उसमें ये इफेक्टिवली काम करता है, चाहे आपको एंटी माइक्रोबियल हो, एंटी वायरल हो, एंटी वायरस हो, या एंटी डायबिटीज, एंटी बीपी, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, एंटी कोई न्यूरॉन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई एंटी डिप्रेसिव है ना, एंटी ऐसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। तो ओवरऑल क्या है कि इसका काफी अच्छा एक हर एक डिसीज में स्पेसिफिक एक इसका रिस्पॉन्स मिलता है। अगर कोई पर्टिकुलर अपने बॉडी में कोई पार्ट है जो डैमेज हो गया है या कोई प्रॉपर तरीके से बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है ना, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये कॉर्डिसेपिन है और एडेनोसिन है, ये अपने सेल और जो टिश्यू है रिपेयरिंग का काम करते हैं। जैसे केमिकल स्ट्रक्चर वाला पहले मैंने बस पहली स्लाइड में बताया था, तो ये जो टिश्यू और सेल होते हैं उनको ये मतलब कि हेल्दी बनाते हैं और उनको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे भी कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर में क्या होता है कि वो फैलता है क्योंकि हमारे जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, उनको डैमेज करता चला जाता है ना। तो ये क्या करता है कि जो कॉर्डिसेपिन होता है वो जाके सीधे वहाँ पे स्टॉप कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं या जो सेल डैमेज हो रहे हैं, तो उनके ग्रोथ को ये रोक देता है। रोकने से ये बेनिफिट होता है कि वो जो भी बीमारी है उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है, और स्टॉप होने के बाद में और जो फिर उसको रिपेयरिंग का काम करना स्टार्ट कर देता है, कॉर्डिसेपिन एंड एडेनोसिन। जैसे कि अपने जो टिश्यू हैं और सेल हैं वो अपने हेल्दी होने लगते हैं, और जो भी अपनी कोई बीमारी होती है वो धीरे धीरे अपने कम होने लगती है। तो ओवरऑल कॉर्डिसेपिन का जैसे कार्डियोवैस्कुलर की प्रोडक्शन है उसमें भी करता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ट्यूमर एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक एसिड। इम्यूनोमॉड्यूलेशन का भी इफेक्टिवली इसका रिजल्ट है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। एंटी ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी भी है पॉलीसैकेराइड में देखें तो। और ओवरऑल इसका देखा जाए तो जैसे मैंने बताया क्रॉनिक एंड शॉर्ट टर्म डिसीज इसका इफेक्टिवली इसका वर्क रहता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉर्डिसेप मिलिटरीज। स्पेशली अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें कि काम कैसे करता है, स्पेशली विद रेफरेंस के साथ में भी है। या सो कॉर्डिसेप इज ए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि हम जानते भी हैं कि हमारे बॉडी में है ना कि फ्री रेडिकल
ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर रहते हैं तो हमें क्या, हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में रहते ही रहते हैं एक लेवल तक, लेकिन अगर वो लेवल से अपर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या ना हमारी बॉडी को नुकसान करने लगते हैं। तो इसमें कॉर्डिसेपिन क्या करता है कि ये जाता है और जो फ्री रेडिकल को इनको कंट्रोल करता है, इनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, एक एक निश्चित लेवल लेवल तक उनको एक कंट्रोल करके रखता है। तो जो फ्री रेडिकल आर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल deseparately seeking electron of stability. They are the known to cause cellular and DNA damage in our body. अगर फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बढ़ जाएंगे तो सिंपल सी बात है, डीएनए डैमेज होगा, आपके जो सेल है, जो अपनी बॉडी के सेल और टिश्यू हैं तो उनको भी डैमेज करने लगता है, ऑर्गन्स उनको भी डैमेज करने लगता है, which in turn of the contribute to aging and onset of the various diseases, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बीमारियां होने लगती हैं। एक से एक बीमारी हुई उसके बाद फिर 2 फिर 3 लाइक। सो एज पर स्टडी के हिसाब से देखा जाए, चाइनीज जर्नल ऑफ कैनेटोलॉजी ये पब्लिश हुआ था 2003 में। सो दिस स्टडी शो कि लो कंसंट्रेशन ऑफ कॉर्डिसेपिन कैन इफेक्टिवली inhibit the oxidation reaction of free radical during the process of viral pneumonia. Superoxidative free radical can damage mitochondrial function and cause mitochondrial dysfunction. So, and inhibit the block the oxidative damage of active oxygen and oxygen free radical to protect mitochondrial function and cell and tissue from oxidative damage. तो इसमें हमारा कॉर्डिसेपिन क्या करता है कि जो फ्री रेडिकल के पेयर्ड होते हैं तो इनको क्या करता है कि उनकी जो पेयरिंग रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो उनको भी डैमेज करने लगता है, कि उनकी जो बॉन्डिंग बनने ही देता, पेयर बनने ही देता है। पेयर नहीं बनते हैं तो क्या है ना, फ्री रेडिकल जो अपने बॉडी के अंदर है वो ग्रो नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते हैं तो जो एक तरीके से वो स्टेबल फॉर्म में धीरे धीरे आने लगते हैं और उनकी संख्या को कम कर देता है, और जो हमारी बॉडी के लिए जो नुकसान होने वाला है उससे हम बच जाते हैं। तो इसलिए इसको मतलब कह सकते हैं कि इसको इसे कॉर्डिसेपिन मिलिटरीज स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। तो कॉर्डिसेप एनहांस द इम्यून फंक्शन कि मेजरली अभी अब हम देख ही रहे हैं कि मार्केट में इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और कैसे उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कॉर्डिसेप जो मिलिटरीज मशरूम है और जिसके अंदर जो कॉर्डिसेपिन है, ये सबसे हाईली जो इम्यून अपना सिस्टम है उसको ये ग्रो करता है। इसकी जो इम्यून सेल हैं उनकी जो फंक्शन है उनको ये इम्प्रूवमेंट करता है हाईली लेवल पे। तो कॉर्डिसेपिन इसे एनहांस द एक्टिविटी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स एंड द phagocytic index of monocytes. NK cell synthesize and secrete a variety of cytokines, exerting a role in regulating immune function and directly killing target cells. And cordycepin can enhance the function of T lymphocyte, regulate effect of T cell and release immune active lymphokines like interleukins, interferon and other. Cordyceps also promote the secretion of gamma interferon, which is a highly effective antiviral substance with extensive immune regulatory effect. So ये कॉर्डिसेपिन जैसे है कि इस लेवल पे ऐसे ऐसे ये अपना काम करता है, जैसे कि इम्यूनिटी सेल को ग्रो करता है। इम्यूनिटी सेल ग्रो होती है तो हमारी ये इम्यून फंक्शन ग्रो होते हैं, इम्यून फंक्शन ग्रो होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम भी है वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। और अच्छा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा काम करेगा तो कोई भी बाहरी जो एंटीबैक्टीरियल है, वायरस है, तो वो हमारी बॉडी को इफेक्टिव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट, एज पर एक स्टडी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक मैंने मेंशन किया है, एज पर कैंग एट एल बिग साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने 79 जो हेल्दी एडल्ट हैं तो उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया 4 वीक के लिए। तो उन्होंने देखा कि
कि उनको एक प्लेसिबो दिया गया, कैप्सूल दिया गया, और उनको एक कॉर्डिसम मिलिटरीज भी दिया गया। तो इनमें उन्होंने देखा कि ओवरऑल उनको क्या इम्प्रूवमेंट मिला। तो जो जितना टी सेल हैं, साइटोकाइन्स हैं, ये इंटरल्यूकिन है, तो काफी इम्प्रूवमेंट इनको देखने को मिला। क्योंकि इससे ये पता चलता है इस स्टडी से कि आप हमारी जो इम्यूनिटी है कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। So the cordisolator enhance NK cell activity and lymphocyte proliferation, partially increase the TS1 cytokine secretion, and was safe and effective of improving cellular immunity in healthy adult men. So मेजर इम्पोर्टेंट रोल इसमें हम देखते हैं कि जो एनके सेल को एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है, लिम्फोसाइट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर को भी और ज्यादा हेल्थ कर देता है, हेल्दी कर देता है। सो दिस इज स्टडी 4। तो कॉर्डिसेप्स मिलिट्री एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, यहाँ पे कुछ मैंने स्टडी और मेंशन की है। तो एज पर साइंटिस्ट जोहन हॉलीडे सजेस्ट इन द Encyclopedia of Dietary Supplement that cordyceps military is able to increase the number of WBC in the body. तो ये cordyceps military स्पेशली क्या होता है कि ये अपने WBC को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर देता है, जिससे कि हमारी की जो एंटीवायरस वायरल इन्फेक्शन है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इनसे ये हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। So due to this very quality, the mushroom is frequently recommended as a energy booster during recovery period from operation. अगर कोई ऐसी कोई पर्सन है कि जैसे कि हम ऑपरेशन के बाद में जो वीकनेस आती है, अगर उनको हम कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज दें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। So it was published in the Chinese Journal of Integrated Traditional Western Medicine that cordyceps militaris improve immunity booster in both healthy person as well as those suffering from leukemia. As per experiment display, yes, experiment displays the WBC count in increase 74%, जो एक हार्वर्ड प्रेस 2003 में ये पब्लिश हुआ था एज ए डाइटरी सप्लीमेंट पे, कि जो ल्यूकेमिया पेशेंट हैं और उनपे ल्यूकेमिया पेशेंट उनपे स्टडी किया गया, कुछ पेशेंट उनको ल्यूकेमिया पेशेंट को लिया गया और कुछ हेल्दी जो पर्सन है उनको लिया गया। तो उनको जब कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज दिया गया तो उन्होंने देखा कि जो हेल्दी पर्सन है वो इसको कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज को यूज कर रहा है, तो 74% तक उनको देखा गया कि हाईली इफेक्टिवली रिजल्ट उनको मिल रहा है, 74% उनको इंक्रीज हुआ। लेकिन जो ल्यूकेमिया पेशेंट से जो पेशेंट थे उनमें 400% तक उनको इम्प्रूवमेंट देखा गया, हेल्थ इम्प्रूवमेंट। तो वेरी इफेक्टिवली मतलब ये अपना स्टडी था कि जो अगर देखा जाए कि जो इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज अपना ऐसे काम करता है। तो थर्ड इज एक और है a book titled Cordyceps militaris is a China healing mushroom, tell about several immune booster as an immunity booster effect of the mushroom along with the increase in the number of NK cell and macrophage, WBC and T helper cell. All these cells boost cellular immunity against fungal and viral infection apart from other as well. जैसे मैंने बताया कि अगर फंगल इन्फेक्शन भी अगर हमारी बॉडी में जो भी हो, ऐसे स्किन प्रॉब्लम हो आपके, है ना, तो कोई स्किन पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई सोराइसिस भी है ना, तो उस कंडीशन में भी ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है कि ऐसे कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज इन द प्रेजेंस एज ए कॉर्डिसेप्स, क्योंकि ये अपने जो मैक्रोफेज है, WBC है और जो टी हेल्पर सेल है, इनको क्योंकि ये इनके नंबर को ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें ये जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं इनसे प्रोटेक्शन एक तरीके से मिल जाती है। तो
अगर मैं कुछ एक्टिवेटर की बात करूं जो अपने रिसेप्टर रहते हैं, तो ये देखा जाए तो कॉर्डिसेप्इन इज स्पेसिफिक एक्टिवेटर ऑफ एडेनोसिन रिसेप्टर. सो द फैमिली ऑफ एडेनोसिन रिसेप्टर इंक्लूड 4 मेंबर. जो एडेनोसिन, जैसे मैं बात कर रहा था, जो एक केमिकल इंग्रेडिएंट है एडेनोसिन, तो इसके भी रिसेप्टर की बात करूं तो ये रिसेप्टर होते हैं A1, A2A, A2B एंड A3. तो इनके मेजरली काम रहता है, कैंसर में भी रहते हैं कि जो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है जो अपने उसमें भी काम करता है, एक कार्डियोवैस्कुलर में भी काम करता है. इन रिसेप्टरों का उसको मेजर रोल रहता है. लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा मेजर इंपोर्टेंट रहता है जो रिसेप्टर A1 और A2A, तो इसमें जो एडेनोसिन स्पेशली है, तो वो इसमें सबसे ज्यादा काम इफेक्टिवली काम करता है. तो ये भी हम इससे भी ये भी पता चलता है कि जो हमारे जो कार्डियो से रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम है, उनमें सबसे ज्यादा ये इम्प्रूवमेंट करेगा. चाहे ब्लड लेवल, चाहे BP चाहे बड़ा हो या कम हो, या कोई थेरेपी भी चल रही है, या उनके साथ में भी दे सकते हैं कॉर्डिसेप को. और या ऐसी कोई सिचुएशन है कि कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, कोई वॉल्व वगैरह भी कोई इशू हुआ है, तो उसमें भी हम दे सकते हैं, वहां पे भी काम अच्छा करता है. और लेकिन यहाँ पे ये है कि A2B और A3 जो रिसेप्टर हैं, यहाँ पे इसका थोड़ा मिनिमम इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं. बाकी का A1 और A2A में इसका बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है. So adenosine has highly affinity for adenosine receptor subtype A1, A2A, and a low affinity for A2B, A3. Sorry. So adenosine act is in antibacterial, antiviral, antineoplastic, immune repair, and recovery mechanism. So an adenosine activates sleep, immune system, tissue repair, and energy जनरेशन. करंटली अगर हम कॉर्डिसेप को यूज करते हैं तो जो डिप्रेसिव पेशेंट है, जो डिप्रेसिव पेशेंट हैं, तो उनको भी अगर हम देते हैं तो उनको ऐसे एंटी डिप्रेसिव का काम करता है. तो वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं और जो ऐसे हो जाते हैं कि डैमेज हो जाते हैं, तो उनको भी ये न्यूरॉन्स का भी एक मतलब उसको बनाने का काम करता है. उनको भी एक हेल्थ ग्रोथ उनकी भी होती है, जो न्यूरॉन सेल्स है. इम्यूनिटी सिस्टम को जैसे बताया कि लास्ट में हमने इसमें देखा था स्लाइड्स में कि उनको भी इम्यून सिस्टम को भी ग्रो करता है. टिश्यू रिपेयर है, सेल रिपेयर हो जाते हैं तो टिश्यू रिपेयर भी हो जाते हैं. एक ये भी है. ओवरऑल ये देखा जाए तो they are report the adenosine activate sleep. So currently there are report the cordyceps adenosine receptor subtypes such as A1, A2A, A2B, and A3 can interact to promote anti-inflammatory effect and cell repair, as well as to protect the lungs, liver, kidney, heart, and brain. So overall जो हमारे रिसेप्टर इसमें काम करते हैं, तो अगर यहाँ पे रिसेप्टर पे अच्छी इसकी जो बाइंडिंग रहती है, तो ये भी हमारी जो बॉडी पार्ट है, तो यहाँ पे इफेक्टिव इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, जो टिश्यू और सेल को रिपेयरिंग का ऐसे काम करते हैं. सो द A2A सबटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन मैनी ऑर्गन एंड सेल सच एज स्ट्रेटम, स्प्लीन, thymus, heart, lung, blood, white blood cell, and platelet. A2A receptor play a regulatory role in peripheral tissue in brain during exercise, mental behavior, sleep, and other. अगर कोई एक्सरसाइज कोई पर्सन करता है, कोई जल्दी थक जाता है, और तो उसको अगर ये डेली बेसिस पे अगर मॉर्निंग टाइम पे अगर इसको हम यूज करते हैं एज ए ग्रीन टी के हिसाब से, तो उसका मेजर जो एक्सरसाइज की टाइमिंग है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है. क्योंकि ये अपने जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसको भी ये इम्प्रूवमेंट कर देता है. उसको भी जो O2 और CO2 का जो सर्कुलेशन रहता है उसको भी इम्प्रूवमेंट कर देता है, जैसे कि हमें आसानी से टायर्डनेस जैसी फीलिंग नहीं आती. सो आल्सो इज ए कंट्रोलिंग इन्फ्लामेशन, मायोकार्डियल ऑक्सीजन. सो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड ये है कि अगर इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी अगर अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी कोई प्रॉब्लम है,
तो ये वहाँ पे भी एज ए एंटी इन्फ्लामेशन का काम करती है। जैसे मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड एंजियोजेनेसिस इन कैंसर एंड अदर डिसीज। तो स्पेसिफिक ये एडेनोसिन है वो काम करता है, अपने जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर को ये एक्टिव कर देता है, जिससे कि ये इतना हेल्थ हेल्थ के मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे में मतलब बेनिफिट मिलते हैं इससे। And cordyceps can selectively inhibit the formation of messenger RNA polynucleotides A chain. इस पे मैं थोड़ा डीपली मैं डिस्कस करूंगा कि कॉर्डिसेपिन विच इज आल्सो नेम्ड 3-deoxy एडेनोसिन। जैसे मैंने अपने केमिकल स्ट्रक्चर में बताया था कि कॉर्डिसेपिन और एडेनोसिन केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। सो कैन बी फॉस्फोराइलेटेड टू जनरेट 3-deoxy triphosphate adenosine. This molecule can interact with RNA polymerase to stop the synthesis of polyadenylate RNA strand, which is important for inhibit RNA virus. So, communicative study have confirmed that cordyceps effectively inhibit the replication and reproduction of variety of RNA and DNA virus. Such RNA वायरस इंक्लूड इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, है ना, एक्स्ट्रा काफी जो वायरस होते हैं उनमें ये इफेक्टिवली काम करता है। कैसे काम करता है जो नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझेंगे। तो द इफेक्ट ऑफ कॉर्डिसेपिन ऑन द वायरस दैट कॉज कोविड-19 हैज नॉट, अभी जैसे कि कोविड का भी एक वायरस है तो उसमें अभी ऐसा कोई प्रूफ किया गया नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो वायरस है उसमें ये इफेक्टिवली ये काम करता है, ऐसे अपनी बॉडी का ऐसे प्रोटेक्शन का काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि जो लाइक दिस, क्योंकि ये जो अपना कॉर्डिसेपिन है जो पॉली ए चैन है, पॉली ए चैन को ये जो सिंथेसिस है उसको जाके सीधा इनहिबिट कर रोक देता है, उसके आगे प्रोसेस बढ़ने ही नहीं देता है, जिससे कि जितने भी वायरस के जो एक चैन रहती है उसको सीधा स्टॉप कर देती है। तो कॉर्डिसेपिन blocks the reproduction of RNA virus because the RNA replication of many virus requires a polyadenylate as a poly A chain. Cordyceps और deoxyadenosine lack of a hydroxy group, जो मैंने बताया था कि केमिकल स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है in the third position which allow to interfere with the elongation of the poly A chain. So of the RNA to block RNA virus replication, तो RNA की जो वायरस रेप्लिकेशन है उसको ये बिल्कुल रोक देता है। The COVID-19 corona as the positive single stranded RNA virus with a polyadenylic acid tail similar to poliovirus, which experimental has shown that is the reproduction can be inhibited by cordyceps. So ये कॉर्डिसेपिन क्या करता है, मेजरली अपनी पोली ए चैन है उसको स्टॉप कर देता है, जिससे उसके सिंथेसिस को जो एक चैन है ये चैन को रोक देता है, जिससे कि जो वायरस की जो आगे जो ग्रोथ होती है वहीं पे स्टॉप हो जाती है, और जिससे कि जो हमारी जो जितने भी वायरस होते हैं ऐसे प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर मैं अपना एक पर्सनली इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब कोविड का सीन था, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लोग यूज करना चाहते थे, तो उनको मैंने इस पर गाइड किया तो काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। मोस्टली लोगों ने यूज किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि ऐसे कि काफ़ी लोग जो कोरोना वायरस में है तो लोग सोचते थे कि माइंड से सबसे ज़्यादा बीमार हो जाते थे, कि मतलब सोचने क्या मुझे कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस, वो सोचते सोचते ही मतलब डिप्रेशन में चले जाते थे। तो ऐसे ये कॉर्डिसेप्स था तो ऐसे एंटी डिप्रेसिव का काम करता था, प्लस एक इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, प्लस आपके जो वायरस है, तो वायरस की जो रेप्लिकेशन जो अपने मैकेनिज्म एक्शन है, जो चैन है जो उसको जो ग्रो करती है उसको भी स्टॉप कर देता है। क्या है ना कि कॉर्डिसेप्स एक साथ फुल हर जगह पे जाके हिट करता है, जिससे कि जो पेशेंट होता है विद इन 15 to 20 डेज में ही रिकवर हो जाता है, काफी अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिलने लगता है। तो दिस तो ये मेजरली इसका कॉर्डिसेपिन का ये मेजर जो मैंने बताया कि जो वायरस में इफेक्टिवली जो कौन सा भी वायरस हो, छोटा या बड़ा वायरस हो, तो उसमें इफेक्टिवली उसमें काम करता है। तो ओवरऑल हमने ये कुछ स्लाइड के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है कि जो मेंशन किया है कि यहाँ पे भी स्पेशली एक अच्छा काम करता है।
और भी हैं चीज़ें कि अगर एंटी डायबिटीज में बात करूँ तो एंटी डायबिटीज में अलग तरीके से काम करता है, उसके मोड ऑफ एक्शन अलग रहते हैं, और कैंसर के उसके अलग रहते हैं, ट्यूमर के अलग रहते हैं, किडनी के रिलेटेड उसके अलग रहते हैं फंक्शन, इसके काम अच्छे बहुत अच्छे करते हैं। अगर मैं प्रिकॉशन की बात करूँ तो स्पेशली मैं बॉडी से मैं मना करूंगा, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, तो इसमें मतलब इसको अवॉइड करें, ना यूज करें। और जो 3 साल से नीचे बच्चे हैं उनको अवॉइड करें, उनको ना दें। 3 साल से ऊपर कितना भी एज हो उनको हम दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात इसकी हमें यह है कि साइड इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे अगर ये इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, इन 3 चीज़ को छोड़ के आप किसी भी पेशेंट को देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तीसरा इसमें एक था कि जो प्री एंड पोस्ट सर्जरी है ना, तो उसमें 15 से 20 दिन का डिफरेंट होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया था कि पिछली स्लाइड में कि जो सर्जरी के बाद में जो वीकनेस आती है, ऑपरेशन के बाद में जो वीकनेस आती है, अगर वो भी यूज करते हैं तो उनको भी अपने हेल्थ रिकवरी बहुत फास्टली कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा कंडीशन ये है कि उसमें थोड़ा 15 से 20 दिन का थोड़ा डिफरेंट रखें, क्योंकि ये थोड़ा अपने ब्लड फ्लो को होता है, ब्लड प्रोटीन को है, थोड़ा हल्का सा डिले कर देता है बस। बाकी का इसमें कोई अपना साइड इफेक्ट नहीं है। ओवरऑल ये हमारा कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन था, तो ये है। अब मैं थोड़ा अपना जो ग्रो करते हैं, एक हमारी जो लैब है उसके बारे में है कि हम कैसे इसको हम ग्रो करते हैं, क्या हमने लैब इसको सेटअप किया है ना। तो कल्टीवेट प्रोसेस ऑफ बॉडी सबमिलिटेड मशरूम, जैसे मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा ना टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना देते हुए मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा। यह है कल्टिवेटिव प्रोसेस ऑफ कॉर्डिसम मिलिट्री मशरूम। जैसे मैंने बताया कि ऐसे माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू ये पूरा वर्किंग स्टार्ट होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो पेट्री डिस्क रहती है जो हम कल्चर मीडिया बनाते हैं, जो कॉर्डिकल साइनेसिस से उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू इसको हम पेट्री डिस्क में एक सीड तैयार करते हैं। सीड तैयार करने के बाद में इसको इनोकुलेशन प्रोसेस, इसको एक लिक्विड कल्चर बनाते हैं। लिक्विड कल्चर के बाद में इनोकुलेशन प्रोसेस, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 25 से 30 दिन लग जाते हैं इस दो स्टेप में। इसमें टाइम लगता है। लगने के बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर इनोकुलेशन प्रोसेस रहता है, इसका भी एक अलग रेसिपी है। रेसिपी बनाने के बाद में फिर इसको इनोकुलेशन प्रोसेस करते हैं। जो लिक्विड कल्चर होता है 2 से 3 ml इसमें हम डालते हैं, और फिर इसको हम अपने एक लैब में स्टोर करके रख देते हैं। और इसको रखने के बाद में फिर इसको 15 से 20 दिन के बाद में ये वाइट हो जाता है। वाइट होने के बाद में जैसे ही इसको हम लाइट देते हैं, लाइट देने के बाद में हल्का सा ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और आफ्टर 45 डेज के बाद में फिर ये ओवरऑल फिर ग्रो हो जाता है, और ग्रो होने के बाद में फिर इसको हार्वेस्टिंग करके हम ड्राई कर लेते हैं। तो ओवरऑल हम इसको जो काफ़ी हाइजेनिक लैब को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है, तो ओवरऑल हम देखा जाए तो 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी हो, लेकिन 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। ह्यूमिडिटी भी हमें काफ़ी अच्छी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, क्योंकि तभी इसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। एक ये रहता है। ओवरऑल इसकी प्रोसीजर में है, और ओवरऑल 60 डेज का इसमें लगता है कि जब इस प्लेटफॉर्म से जब ये थ्री पॉइंट से लेके 6 पॉइंट तक इसमें 60 डेज लगते हैं। बाकी के अदर इसके यहाँ पे लगते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो 3 महीने लग जाते हैं अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ जो पिक्चर है वो हमारी लैब की है। ये जो मैंने बताया कि वाइट इनोकुलेशन प्रोसेस के बाद में जो जार हैं ऐसे ग्रो होते हैं ये। फिर इसको लाइट देते हैं, लाइट देने के बाद ये अच्छे ग्रो करते हैं। और ये एक जार में इस टाइप से ये ग्रो करते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, गोल्डन कलर में आप देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। लाइक दिस ये पिक्चर है। इसको मतलब ये मेच्योरिटी फॉर्म में आ चुके हैं, तो इसको ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और जो हार्वेस्ट करने के बाद में डिहाइड्रेटर के थ्रू और ड्राई करने के बाद में फिर अपना ये फाइनली प्रोडक्ट अपना तैयार ये होता है 3 महीने में। थोड़ा इसमें टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है इसमें, लेकिन उतने अच्छे इसके रिजल्ट भी हैं, काफ़ी अच्छे इसके रिस्पॉन्स हैं, हेल्थ बेनिफिट हैं। और अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो स्पेशली कॉडी अमृत के लिए, तो कॉडी अमृत में
जो यूएसबी है स्पेशली हमारे कॉडी अमृत प्रोडक्ट में, तो इसमें 100% फ्लोटिंग बॉडी हम देते हैं, क्योंकि इसमें जैसे ओल्ड मैं स्लाइड में देखूं तो जो इसकी जो ये वाला बेस इसका रहता है, बेस रहता है, तो इसमें क्या रहता है, काफ़ी लोग कुछ मतलब मिक्सिंग करके दे देते हैं, प्योर क्वालिटी नहीं देते हैं, है ना, काफ़ी परसेंट। और तो इसमें हमारा ये क्या बेनिफिट रहता है कि हम प्योर फ्लोटिंग बॉडी देते हैं, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं, कोई कुछ नहीं, 100% प्योरिटी। प्लस आप भी देख सकते हो कि हाँ इसमें क्वालिटी है या नहीं, आप भी जज कर सकते हैं। अगर आपको 100% शूटिंग बॉडी मिली तो मतलब क्वालिटी के प्रोडक्ट को दे रहा है। सो नो मिक्सिंग ऑफ एनी सब्सटेंस और एक्स्ट्रा मटेरियल, प्योर वेजिटेरियन। मैंने जैसे बताया कि जैसे कि इसमें हम ब्राउन राइस का यूज़ करते हैं, कोई एक्स्ट्रा मतलब रेसिपी का यूज़ नहीं करते हैं। और मेंटेन बॉडी सेपन लेवल में स्पेशली ये है कि मार्केट में अभी जैसे इंडिया के मार्केट में आया है तो काफ़ी मार्केट में ग्रोथ कर रहा है। काफ़ी लोगों को थोड़ा मिसकम्युनिकेट भी हो जाता है, थोड़ा दिक्कत, थोड़ा मिसगाइड भी किया जाता है लोगों को, तो उनको ये बोला जाता है कि हाई बॉडी सेपन आप अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा है, ये मेरा अच्छा है। तो मैं उनको पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर ये बोले कि आपको बॉडी सेपन बहुत ज़्यादा है, ये हमेशा है कि कॉर्डिसेपिन जो एक्चुअल में जो हाईएस्ट अच्छी क्वालिटी का है ना, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड में आता है, तो वो अपना 8 का कॉर्डिसेपिन है। अगर 8% कॉर्डिसेपिन आता है तो वो बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी में अब कोई बोलता है कि मेरा 11 कॉर्डिसेपिन है, मेरे पास 20 कॉर्डिसेपिन है, 15, 20, 25 कॉर्डिसेपिन है, तो मैं स्पेशली मैं उनको पर्सनली मैं लोगों को बोलूँगा कि कॉर्डिसेपिन वो वाला यूज ना करें, क्योंकि वो अगर आप, सिंपल सी बात है कि अगर आप हाई डोज यूज करोगे तो आपको बॉडी रेसिस्टेंस ले जाएगी। आने वाले टाइम पर आपको ये भी दिक्कत हो सकती है कि भाई आपकी कोई बॉडी में कोई ड्रग भी आपको कोई इफेक्टिव रिजल्ट ना दे तो अगर कोई चीज़ अगर आप कोई रेगुलर बेस पे यूज करना चाहते हैं तो एक अच्छी क्वांटिटी में अच्छे लेवल की चीज़ यूज करें। लिमिटेड क्वांटिटी में या आप लेवल पे यूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो स्पेशली मेरा जो कॉर्डिसेपिन है कंपनी का, जो मैं हाईली मेंटेन करके रखता हूँ, तो 7 to 9, और मैं कमिटमेंट भी करके देता हूँ कि कोई भी पर्सन कभी भी कहीं भी चेक करवा सकता है गवर्नमेंट लैब में जाके, तो उसमें मेरा 7 to 9 के बीच का ही कॉर्डिसेपिन निकलेगा। तो बेस्ट टू बेस्ट मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, बेस्ट टू बेस्ट मेरी सर्विस भी देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। कि इसमें हमारी टीम है, तो उसमें पेशेंट का प्रॉपर तरीके से हम उसका फॉलोअप लेते हैं, उसको हम गाइड भी करते हैं। पॉसिबिलिटी अगर वो है कि पेशेंट जानना चाहता है कि कॉर्डिसेपिन मिलिटरीज क्या है, क्या इसके बेनिफिट है, तो वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं, और उनके प्लस जो डाउट होते हैं वो हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कि मेरी सोच है कि मैं चाहता हूँ कि पर्सन जो भी चीज़ यूज़ करे तो उसको उस चीज़ के बारे में जानकारी हो स्पेशली। और इसमें हमारी सर्विस की और मैं बात करूं तो ओवरऑल कहीं से भी कोई इंक्वायरी आती है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से उसका हम फॉलोअप लेते हैं। ओवरऑल इंडिया में हमारी इसमें कोरियर सर्विस अवेलेबल है, और जैसे ही अगर कोई ऑर्डर पे प्लेस करता है तो विदिन 24 आवर्स में हम विदिन डिस्पैच की डिटेल दे देते हैं, और इसको हम ट्रैक भी करते हैं। पेशेंट को भी हम बोल देते हैं, क्लाइंट को भी बोल देते हैं कि आप भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पे अभी है। मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट कि हाउ टू कंज्यूम, सिंपल सी बात है, जैसे हम इसको ग्रीन, बहुत सिंपल है इसको यूज करना, कि जैसे हम ग्रीन टी यूज करते हैं लाइक दिस, उसको हम वैसे ही यूज करते हैं। अगर आप ग्रीन सिंपल ओनली कॉर्डिसेप को यूज करना चाहते हैं, सिंपल सा है, 1 कप पानी को आप गरम ले लीजिए, उसमें जितनी मैं क्वांटिटी में बताऊंगा तो 1 से 2 ग्राम कॉमनली 1 से 2 ग्राम उसमें आप प्रोटीन बॉडी को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और 2 से 3 मिनट के बाद फिल्टर करने के बाद उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो उनको स्टिक हैं जो कॉर्डिसेप मिलिटरीज की प्रोटीन बॉडी, तो उनको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। गर्म पानी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो प्रोटीन बॉडी का जो गर्म पानी में जो एक्सट्रैक्ट है वो गर्म पानी में मिल जाता है, इसलिए हम गर्म पानी का इसका हम यूज करते हैं। और स्पेशली ध्यान ये नोट करने वाली बात है कि अगर आप जब भी इसको यूज करें तो इसको एम्प्टी स्टमक ही यूज करें, क्योंकि तभी आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसको।
इम्पटी स्टमक जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितनी टाइमिंग रहेगी, उतना अच्छा आपको रिजल्ट अच्छी मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जो इम्पटी स्टमक होता है तो डायरेक्ट जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट हमारे ब्लड में चला जाता है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसके मिलते हैं। और ये भी है कि अगर एक मैं यहाँ पे और मैं एक स्टडी मैंने मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन एक यहाँ पे और है कि जैसे कि ये ग्रीन टी से अगर मैं इसको मैं कंपेयर करूँ तो एज पर एक स्टडी के हिसाब से ग्रीन टी से ये 10 लाख गुना इफेक्टिव है। तो ओवरऑल जो हमारे ग्रीन टी में हमें जो बेनिफिट हमें मिलते हैं, जो हम जानते हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि उससे हमें 10 लाख गुना इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे इससे। और ये भी है इसमें अगर कुछ फ्लेवर भी हमने रखे हैं कि अगर इसमें कोई फ्लेवर कोई ऐड करना चाहते हैं कि किसी किसी पर्सन को सिंपल पानी या गर्म पानी पीना अच्छा नहीं लगता, तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं कि जो उसमें हम लेमन, जो फ्रेश लेमन है, उसमें 3 से 4 ड्रॉप फ्रेश लेमन के डाल सकते हैं। जब उसको हम कंज्यूम कराएंगे तो लेमन फ्लेवर बन जाएगा। अगर हनी फ्लेवर बनाना है, आपको स्वीटनेस चाहिए, तो उसमें आप 2 से 3 ड्रॉप प्योर हनी यूज करें। कोशिश करें कि प्योर मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। और उसमें 2 से 3 ड्रॉप आप इसमें यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसमें हनी फ्लेवर आ जाएगा। 1 किलो लौंग इलायची का भी अगर आप इसको फ्लेवर पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप पानी बॉईल कराएंगे तो इसमें 1 या 2 स्टिक आपको लौंग इलायची के डाल देना है, जिससे कि आपको लौंग इलायची का एक फ्लेवर बन जाए। हाँ, अगर जो डायबिटीज पेशेंट हैं, अगर वो यूज करना चाहते हैं इसको और उनको थोड़ा स्वीटनेस चाहिए, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि वो स्टीविया के जो लीफ होती हैं, फ्रेश लीफ होती हैं, तो जब पानी को बॉईल करते हैं तो स्टीविया के 2 से 3 लीफ को उसमें आप डाल दीजिए, जिससे कि उसके पानी में स्वीटनेस आ जाए। तो हम स्टीविया का लीफ भी यूज कर सकते हैं। और आंसू में इसमें एक हमारा दूसरा और है कि जिसमें हम और ऐड किया है स्पेशली फ्रेश हर्ब, कि ये भी हम सर्विस दे रहे हैं। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है कि हम यहाँ पे फ्रेश चीज़ दे रहे हैं, 100% क्वालिटी दे रहे हैं, कोई मिक्सिंग नहीं है ना। तो इसमें कि जो गुरमार है, एलोवेरा है और फ्रेश स्टीविया लीफ है, स्टीविया लीफ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। गिलोय लीफ भी है इसमें, कि अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं तो इसमें आपको क्या है कि डायरेक्ट गार्डन से कट किया जाएगा, पैक किया जाएगा और आपको कुरियर कर दिया जाएगा। और 3 से 4 दिन में, वर्किंग डे में आपके पास कुरियर से आपको रिसीव हो जाएगा। सो इसमें आपको मैं फ्रेश दे रहा हूँ, कोई उसमें वो नहीं रहेगा। और इसके साथ में अभी और भी मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ फ्रेशर, और कि इसमें एक और हम और एड ऑन करने वाले हैं इसमें मंथ में, कि जो हनी प्योर चाहते हैं तो हनी प्योर हम वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस महीने से हमारी वेबसाइट पर भी शो होने लगेगा। प्लस एक अगर घी चाहते हैं स्पेशली, तो वो भी एक अवेलेबल है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे आपको प्योर चीज़ मिलेगी, कोई मिक्सिंग नहीं। जैसे हम चाहते हैं ना, जैसे गांव में वो चीज़ें मिलती है, प्योरिटी वाली जो चीज़ मिलती है, वो हम चीज़ मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं स्पेशली। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो इसमें हमारी जो, जैसे मैं बता रहा हूं कि जो फ्रूटिंग बॉडी में अवेलेबल है, जो पैकिंग साइज है वो 15 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है ये। और जो हमारी कॉस्ट है वो कॉस्ट भी काफ़ी हमने एवरेज रेट रखी है, ना कोई ना ज़्यादा ना कम, एवरेज रेट रखा है मैंने। और इसमें साथ साथ हर महीने कुछ ना कुछ डिस्काउंट फिर भी इसमें लेके आ जाता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसको यूज़ करें, एक बार इसके बेनिफिट इसको देखें, फील करें इसको। और आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हेल्थ के रिगार्डिंग आने वाली है, तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये है कि आपके अपने हेल्थ इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा रख सकते हैं, हेल्थ मेंटेन काफ़ी अच्छी रख सकते हैं इसमें। अगर मैं लैब की बात करूं तो हमारी जो लैब है वो उत्तर प्रदेश में है, विलेज राहतपुर है। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमारी लैब है, जो हाइजेनिक लैब की मैं बात कर रहा था। वहीं पे हमारा गार्डन भी है, तो वहाँ से ही हम डायरेक्ट जो फ्रेश रखते हैं शेयर करते हैं, मतलब भेजते हैं, डिस्कस करते हैं। मार्केटिंग ऑफिस हमारा दिल्ली में है, तो जो भी इंक्वायरी होगी वो आपको दिल्ली ऑफिस, हेड ऑफिस से ही आपको मतलब कोई भी इंक्वायरी होगी सॉल्व की जाएगी। कॉन्टेक्ट डिटेल है, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी है तो वहाँ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल करना चाहें तो आप मेल कर सकते हैं info@growofyourself.com।
वेबसाइट है www.growupyourself.com। तो वेबसाइट पे भी हमने काफ़ी बहुत सी चीज़ों को हमने मेंशन किया, और भी चीज़ें टाइम टू टाइम उसमें अपडेट हम करते रहते हैं कि अगर आप कॉर्डिसेप में और जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। बेनिफिट के ऑप्शन में जाएंगे तो एवरी डिसीज का मैंने एक्सप्लेन किया विद रेफरेंस के साथ, तो ये भी है। तो थैंक यू Thank you so much, Gaurav, for the बस very बहुत very. ज़्यादा टाइम हो गया सर, सॉरी। That's all right. That's all right. It's a very detailed presentation, और hope हम सबको कुछ नया tool, नया तरीका to solve our clients. Very sorry. जी जी, यस मैम। Sorry, Dr. Ashwini, please continue. Sorry. No, I'm saying it is very good, and we got to understand the nitty-gritties of it, because largely most of the problems are immune-related problems, all the chronic problems, and this is where viral infections, fungal infections, and bacterial infections are the triggers of the problem. And Yes, sir. another part of the problem is the stress part. This is where Yes. also cordyceps plays a major role as an adaptogen. So Yes, it's yes. an all-in-one and can be a very great tool. Now we can open up to questions. Yes, Dr. Preeti. Yeah, I was just saying very nice detailing of the product. Thank you, ma'am. Thank you, Gaurav. And Yes, of ma'am. course, I am using it and I'm really liking it. जैसे Dr. Ashwini ने बोला, adrenal fatigue and immune system, Yes, ma'am. immunity के patients में, I'm getting very good results. I still have to come back to you on results in diabetics and hypertensives. Yes, ma'am. Yes. वो मैं try करके आपको बताऊंगी. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for ma'am supporting also, ma'am. Thank you. Especially sir, thank you sir for Dr. Sunil sir. Sir, आपने सर आपकी वजह Thank से you, sir, for giving us the tool to help our patients. So, all right, we take the questions, Gaurav ji. कोई हमारे हाँ जी, संदीप, Dr. Sandeep, please unmute. Dr. Ashwini, ये बताइए, what is the role of this in autoimmune diseases? Right, sir. So the root cause of autoimmune, as per we understand, one is the dysbiosis of the bacterial infections or fungal infections or viral infections. So this is where it can be very useful. Second thing is stress part. If a person is stressed out, this is where this works as an adaptogen to release the stress, thereby helping with the immune system. And of course, I think one which I learned today is it helps to repair the DNA. For example, poor light, EMF, they does a damage to the DNA. Toxins does a damage to the DNA. So cordyceps can help to repair the DNA damage also. So have you anybody used for autoimmune disease, and what is the dose for autoimmune disease? Which dose we should be using? ये कुछ idea है आपको? मतलब anybody has used regarding? Yes. हाँ जी, सर, बहुत हम यूज कर रहे हैं. Almost most of the people with high auto antibodies, we use them, and 1 to 2 grams, as Gaurav mentioned, every day, along with other things. Of course, it's not that we solely rely on one product. जो भी सब चीजें, और हम ऑटोइम्यून प्रोटोकॉल के साथ इसको ऐड करते हैं. ओके, तो जैसे आप कर रहे हैं, और जो गट फ्लोरा को अगर हमको बैलेंस करना हो तो आप नॉर्मली क्या यूज कर रहे हैं? आर यू यूजिंग सेमी स्पेशल प्री और प्रोबायोटिक्स अलोंग विद दैट, या व्हाट डू यू डू अलोंग विद दिस in autoimmune disease especially? Right, just so what is my understanding of what I do is I first work on the cleaning of the infections. Fungal infection agar hai to I go with specific Esbolati as a probiotic, or any antifungal drug, pharmaceutical. If it is let's say Clostridia infection, then anti-Clostridia I go. Along with that, yes, after the cleanup thing and improving the immune system, then we get into a more broad spectrum probiotic, VSL3 ho gaya, or any such thing. Yes, alongside we start using cordyceps. मैं देख रहा था एक प्रोडक्ट है, टॉप एडी करके आया है, and that has got Salivarius, Lactobacillus salivarius. Right, sir. Especially वो उसको atopic dermatitis में promote कर रहे हैं. So the companies are coming to me. Right. They said it has a specific role in eczemas and atopic dermatitis and things like that.
So I was curious about it, and they were telling कि काफी studies हुई या papers हुए हैं, especially Salivarius, Lactobacillus salivarius has a very good role. Have you used Lactobacillus salivarius especially for eczema and autoimmune conditions or not? Not Salivarius, but yes, I use this basic Sirota that is there into the this thing, and the Returai is a great one. I'm Returai and Returai is good for autoimmune. For autoimmune, you mean? It is good for the SIBO, and if SIBO is taken care, yes, autoimmunity will be taken. So SIBO means small intestine, yeah, SIBO. That's right, sir. Okay, thank you. Yes, Supriya, you have a question? Yes, good evening, sir. It was a very nice and informative session. Sir, I'm a patient. I'm a thyroid patient and under Jeevanam. And sir, the recipe which has been given to me is with all the spices with cordyceps. Yes. So, sir, the problem which I'm facing is all the spices which I mentioned, like 8 to 9 spices. It is every day. It is a little difficult for me to fetch everything and make. So, is it okay if I just make it as mentioned with lemon or absolutely. Yes. So those spices are to enhance the effectiveness of the recipe, but yes, main ingredient is cordyceps. All right, sir. And one more thing, it is given that it should be taken on empty stomach. What I read today in the this thing workshop, sir. I've been given at to take it at evening 5 o'clock. So, which is not an empty stomach condition that time. Like so, if you have your lunch by let's say 1 o'clock, it takes 3 to 4 hours. For the yes. So, is it so 3 to 4 hours gap is okay? It's enough. Yes. All right, sir. Okay. That's it, sir. Thank you, Supriya. Any other inquiry, sir? So I think it's my whatever little experience is. Of course, we deal with a complex issue. I have been giving it to most of the autoimmune guys, and overall, we get very good outcomes. We see a lot of drop into their autoantibodies. That's a usual thing that we see all the time. So yes, I cannot say that only this or that. It's an overall approach of wellness or autoimmune protocols, and this is one great tool, very powerful tool that can add value to a practice. And of course, at the end of the day, a practitioner is with the tools. So if I have more tools, I can do better things. So that's all. Dr. Preeti, you have a. No, I think Dr. Ashwini, I second whatever you have said. I am enjoying this tool just because of the fact that amino acids is always a problem in my practice in my patients. And wo kaun sa de, kitna de, digest ho, nahi ho. So when I read this combination, I really love it. With the linoleic acid, fats bhi theek hai, amino acid bhi theek hai, adrenal fatigue अच्छा देख लेता है, तो insulin sort कर देता है, immune system को, मतलब, I think this is obviously have to be used cautiously. It's not a very reasonable product. It comes at a price, but I'm sure we can benefit a lot of patients with this product. Right. Or dusra, what I understand so far about cordyceps, it's also like ashwagandha, but ashwagandha has a hot nature. We have to see the nature of the patient as per the Ayurveda to prescribe ashwagandha, or largely in the winter season. So, but this cordyceps is not hot, not cold. So it can be used for any patient. So we don't have to worry about the nature of the patient, and which we are not. At least I'm from a Western medicine training, so I don't know about the hot and cold nature. Exactly, you're right. So are there any interactions with other drugs? No.
यानी जो अगर कैंसर है, कीमोथेरेपी वाले अगर जो है जिसका हो चुका है और वो भी अगर अपने ड्रग से अगर यूज कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात ये भी है कि उसके साथ में कोई इंटरेक्शन इसका नहीं है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो अगर एलोपैथी कोई मेडिसिन चल रहे हैं तो इनके साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है, और सबसे सेफेस्ट, हाईली सेफेस्ट मतलब ये कॉर्डिसेप्स है। And any side effects? नो 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 सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कॉर्डिसेप्स की कि अगर आप सब फ्रूटिंग बॉडी को आप यूज कर रहे हैं, है ना सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि मार्केट में सर कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं कि जो कॉर्डिसेप्स से मतलब मिलके बनाए गए हैं, कुछ से एड ऑन करके बनाया गया है, लेकिन नाम कॉर्डिसेप्स रख देते हैं, लेकिन उसमें और भी चीजें मिक्सअप रखते हैं, जैसे कैप्सूल पाउडर फॉर्म में भी आते हैं मार्केट में। तो मैं उसकी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन कॉर्डिसेप्स फ्रूटिंग बॉडी की मैं कहूँगा तो उसमें आप यूज करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। The only thing I want to, sorry, the only thing I want to mention here now in my practice is, अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म लेना एग्री करता है तभी देना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक महीना 1.5 महीना देंगे ना, सपोजिंग एस्थमा है या इसिनोफिलिया है, ऐसे केसेस में 1-2 महीने में फर्क नहीं आने वाला है। मतलब आई एम सीइंग जो पेशेंट्स 1.5 महीना 2 महीना लेके छोड़ दे रहे हैं ना, I am not seeing very good results, but the moment आप 3 महीने 4 महीने ले रहे हो, आपको असर दिखने लग रहा है। बिल्कुल। तो ये बस एक आई वुड से कि ये कॉशन है हम लोगों के लिए जो प्रिस्क्राइबर्स हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, पेशेंट थिंक्स कि 3 वीक्स ले लिया, 4 वीक्स ले लिया, अब आई एम टायर्ड। सो आई थिंक पहले बताना, हाँ बिल्कुल मैं मना कर देता हूँ मैम कि अगर आपको क्रॉनिक डिसीज है तो आपको लॉन्ग टाइम तक आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब कम से कम वो 3 महीने के लिए कमिट करे, उसके बाद ऑफ एंड ऑन ले ले तो कोई चैलेंज नहीं है, बट लेस देन दैट आई थिंक वी शुड बी केयरफुल। बस ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था विच आई थॉट आई शुड शेयर। या राइट मैम ना, हाँ, थैंक यू। So we can request Gaurav ji to make it a little more affordable in the future. So very good, Dr. Ashwini. Thank you. Dr. Ashwini, one question more. हाँ जी सर। Dr. Sandeep here. हाँ जी सर। So sir, इससे पहले Ganoderma was in a big name and it came. Now Cordyceps is coming in a big way, and both are mushrooms. So we don't know really which is to be used where, and Ganoderma का क्या role है, या Cordyceps has not taken over Ganoderma. So एक तो मुझे ये आपसे क्वेश्चन पूछना है। Second, because you are dealing with autoimmune diseases, have you found any role of camel milk, especially in diabetic patients or with autoimmune diseases? I was reading a lot about camel milk as a type of milk. So any talks about camel milk and what is the difference between Ganoderma and Cordyceps, and how do you correlate the two of them? आप थोड़ा सा अगर you can highlight the two, because Ganoderma was something what very popular one time. Yes. Oh yes, even today it is popular for PCOS and all. I think Gaurav can answer it better. Where to use Ganoderma, where to use Cordyceps? What about camel milk? What is your take on camel milk, sir? Camel milk, Dr. Bhasin, I have used a lot in autoimmune cases and in diabetics and all. It is a good change. And it does give positive results to the patients. I will share with you separately details about camel milk, kya mein different hai, and why it is good. Yeah, which conditions did you use camel milk and what was your results? Which did you have diabetic patients or not? Autoimmunity. Type 1 diabetes में studies हो रही हैं camel milk के साथ. हाँ, बिल्कुल हो रही है. आपका अपना क्या रिव्यू रहा है, मतलब in your patient what kind of results you got? Does it work in type 2 diabetes also or doesn't work? It works wherever आपको gluten avoid करना है. तो जहाँ पे भी आपका leaky gut है ना, वहां पे कैमल मिल्क वर्क करता है, बिकॉज इसका टेस्ट भी लोगों को समझ में आता है. ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. टाइप 1 डायबिटीज में आई कांट से रिजल्ट्स अभी, बिकॉज इट्स नॉट बीन टू लॉन्ग. मैंने अभी 1-2 बच्चों को दिया है, बट अभी बहुत लंबा मैंने नहीं देखा है, तो मैं अपने रिजल्ट्स नहीं बता सकती. बट हाँ, इट्स अ गुड एडिशन टू द डाइट प्लान. हम जहाँ पे भी एलिमिनेशन डाइट करते हैं ना और डेयरी हटाते हैं, उनमें कैमल मिल्क मेरा गो टू चॉइस होता है, अगर फंड्स कंस्ट्रेंट ना हो तो, क्योंकि कैमल मिल्क इज लिटिल एक्सपेंसिव. I know, yeah, I was searching for it.
I think Amul has come up with camel milk, and I think 2-3 more companies have come up with it. Amul is providing Yes. it now. Amul is providing it. Yeah. So I think a little my take on this is any milk which is pasteurized, okay, it has lots of ability. So if we see, dairy is becoming a problem because of the hybrid nature of this. That is why it is more inflammatory and causing type 1 diabetes. Now, probably as a replacement to that, yes, camel milk is an option. Whether it supports that or not, it's a quality of the product also. If it is a fresh camel milk, yes, it'll have those growth factors or possible immune boosters or immune supporters. So if it is a pasteurized, okay, it lost its microbiome. It is into plastic packaging. So when probably they test it on the raw milk, what they deliver is something else. So that's a different product altogether. So I think, or if we can buy dry milk, which is nicely processed by Dry. So camel milk na generally, Dr. Ashwini, जो company मैं use कर रही थी, I'm forgetting the name also अभी. Dry milk आता है. Most of their milk is exported. Right. अभी उन्होंने इंडिया में थोड़ा देना शुरू किया, and you are right. But उसमें result ठीक है. So camel milk का ना, there is difference between how close it is to human milk and कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसमें काफी रिच होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं. एंड ऑफ कोर्स इसका जो प्रोटीन है वो डेयरी काउज मिल्क जैसा नहीं है, which is not very वो. Right. Yeah. I used highest camel powder, HYE. This is the company. If you can, I don't know if you can see it. The highest camel powder, Right. that's one that's available. So I don't know, I don't have much clinical information, but I was reading on that. और Ganoderma के बारे में आप क्या बोलेंगे, Dr. Ashwini? Yes. Are you using it or not using it or what now? I have not used it, sir. जी सर, मैं गौरव अपना Yes, ma'am. ओपिनियन दे दो, फिर आई विल टेल. यस मैम. मैम, ये जो गैनोडर्मा है वो भी मेडिसिनल मशरूम है, लेकिन क्या होता है कि जो गैनोडर्मा को मेजरली फोकस किया जाता है, जो टारगेट किया जाता है, ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ही टारगेट किया जाता है. और भी कोई चीज़ में नहीं दिया जाता है. उसके भी थोड़ा एक मिनिमम साइड इफेक्ट है, लेकिन उसमें अभी मुझे और थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, है ना. तो लेकिन उसमें स्पेशली टारगेट करते हैं इम्यूनिटी के लिए. लेकिन उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करूं तो उसमें जो गैनोडर्मा में है एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत एज कम्पेयर टू कॉर्डिसेप मिलिटरीज कंपेयर करूं तो कॉर्डिसेप मिलिटरीज में ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है एज कम्पेयर टू गैनोडर्मा. तो उसमें कुछ स्पेसिफिक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो वो ऐसे इम्यूनिटी के लिए ही मतलब टारगेट करते हैं. तो बाकी के जो कुछ हैं तो वो भी मैं आपको सर मैं बता दूंगा सर. तो थोड़ा मुझे टाइम चाहिए. आपको पर्सनली मैं आपको इसकी चीज़ में आपको डिटेल में फॉरवर्ड कर दूँगा. लेकिन गैनोडर्मा को सिर्फ ओनली इम्यूनिटी के लिए ही फॉरवर्ड करते हैं. अब जितने मार्केट में ब्रांड होंगे सर वो वहीं पे फोकस करते हैं, वो किसी और चीज़ के लिए वो प्रेफर नहीं करते. जी सर. I think one thing that we should consider nature of the product. The safest part about cordyceps is because of it's not hot, it is not cold, so it can be used in any season and any kind of prakriti of the patient, if I'm right. Okay, sir. I think, but yes, Dr. Sandeep, if any questions on the whatever little we understand so far autoimmunity and what sort of protocols we use, whatever products we have been using, so I would definitely get in touch with you and yeah, it will be nice. Yeah, it will be nice because I'm dealing with a lot of vitiligo patients. My major work is with vitiligo. One of my major work is with vitiligo. Right, sir. So in vitiligo, my understanding it's a fungal problem. Yeah. Triggered fungal triggering the what do you say, autoimmunity, and leaky gut is another this thing. So I always see in vitiligo there's a fungal infection, and of course we test it. So I can share my understanding on that. Yeah. Probably we can get on a call and do that part. Oh, have you tried Nigella sativus? That is the black seeds.
I have, Nigeria yes. What is your, what do you think is the take of Nigeria sativus? Because there is a compound called thymosin in this. Right. Thymosin, one company has come up also with iska jo extract hai thymosin sativus, black seeds ka. They're saying it is very good for immune balancing. Have you tested it, tried it in any way? So I have given to few type 1 diabetics, and it has a good role in balancing the gut microbiota in terms of sort of antibacterial, antifungal this thing, and this is what is driving the immune system either in a good way or a bad way. So immune system, gut microbiota is a driver to the immune system. So this is where I think my understanding that it plays a good role to balance or killing the bad guys as a antibacterial, anti-viral. All right, I think good, Gauravji. Thank you so much. I'll share your details in the group. I'll share your contact number. And if any practitioners want to have for their practice, they can get in touch with her. Of course, details can be discussed there. And Sandeep sir, I will be in touch with you. Whatever little I know, I will. Ji sir, especially sir, मैं permission चाहूँगा sir, Dr. Sandeep sir says please sir give me one opportunity and especially sir if possible sir अगर आपसे सर मिल सकते तो especially sir personal sir on call पे call पे बात हो जाए या sir face to face meeting. I think Dr. Sandeep is in Mumbai. No, I'm Delhi. I'm in Delhi. Okay. अच्छा सर, अच्छा ठीक है. Ranjan Park, CR Park. All right sir. Okay. Delhi. Sure, sir. Yeah, definitely sir. मैं अभी currently sir दिल्ली से बात कर रहे हैं, सर बोल रहा हूँ सर मैं. तो सर पॉसिबल है कि सर बिल्कुल सर आपसे सर मैं मिलना चाहूँगा सर मैं. अगर आप सर अलाउ करें तो सर. या नो प्रॉब्लम, आप आ सकते हैं. अपना नंबर यहाँ लिख देता हूँ. So चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं. जी यस सर, डेफिनेटली सर, मैं बिल्कुल सर आपसे मिलूंगा सर. All right. Thank you so much. Thank you, Dr. Ashin. Nice meeting you. Dr. Thank Preeti, you, sir. so nice. Again, lot of information. And Dr. Preeti, आपका जो last हुआ था on the use of peptides, are those peptides available? मैं melanotan को use करना चाह रहा हूँ vitiligo में, and I've been searching to get melanotan 1. So any idea how do we get melanotan 1? Anybody of you know how to get melanotan 1 in India? Dr. Sir, हमारा बात हुआ था last time एक webinar. Right, sir. So Dr. Preeti has dropped out. So we are trying to get in touch with the major manufacturers in US. So that process is still on. So once we have more information, we definitely. I'm looking for melanotan 1. If you can help me to get melanotan 1. Sure, for sir. vitiligo, it is supposed to be a very good compound. So अगर आप देखिए, अगर आपको कुछ मिलता है या किसी को भी मिलता है. Sure, sir, definitely. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, guys, for joining in. Have a good evening. Bye-bye. Thank you, sir.